السلام علیکم، آپ دیکھ رہے ہیں گدرشہ پوائنٹ۔ میں ہوں آپ کے ہوسٹ ماجد سمد۔ بلوچستان میں مختلف مسئلہ مسائل ہیں، وہ امن امان کے معاملات ہوں یا کہ سیاسی عدم استحکام کی صورتحال ہو، نوجوانوں کی مایوسی، اس حوالے سے ہم بات کریں گے۔ ابھی ہم موجود ہیں مری میں، یہاں پر ہمارے ساتھ موجود ہیں ایک سینئر صحافی عمران منگی صاحب، جو 30 سال تک بلوچستان میں رہا ہے۔ بلوچستان کے معاملات کو، بلوچستان کے لوگوں کے بیچ رہ کے بلوچستان کے معاملات کو اچھی طرح وہ سمجھتے آ رہے ہیں۔ ابھی بھی وہ مختلف موضوعات پر بلوچستان کے حق میں بات کرتے آ رہے ہیں۔ ابھی ہم ان سے جانتے ہیں کہ بلوچستان کے جو یہ معاملات ہیں، جو مسائل ہیں، امن امان کے مسائل ہیں، نوجوانوں کی مایوسی کے مسائل ہیں، وہ موجودہ جو حکومت ہے، عوامی نمائندے ہیں، ان کے بارے میں ان کی کیا سوچ ہے، وہ اپنی کیا رائے رکھتے ہیں۔ السلام علیکم سر، وعلیکم السلام۔ آپ کی بڑی مہربانی، اپنے ٹائم دیا۔ بہت بہت شکریہ۔ اچھا سر، پہلے آپ ہمیں اپنے ہمارے ناظرین کو یہ بتائیں کہ اپنا مکمل تعارف تھوڑا کرائیں۔ جی، میرا نام عمران اطہر منگی ہے۔ میں گزشتہ کئی سالوں سے صحافت سے وابستہ ہوں۔ میری ساری ایجوکیشن بلوچستان کی ہے اور میرا شروع کا کیریئر بھی بلوچستان سے ہی رہا ہے صحافت کا، اور اس کے علاوہ جتنی بھی میں ڈاکیومنٹری ڈائریکشن میں کام کرتا رہا ہوں، اور ایز اے ڈاکیومنٹری ڈائریکٹر کے طور پر جتنا بھی میں نے کام کیا ہے وہ زیادہ تر بلوچستان کے مختلف ایشوز پر کام کیا ہے، جس میں بلوچستان کی ایجوکیشن ہے، زراعت ہے، امن و امان کی صورتحال ہے، اور صفائی کے صورتحال کے حوالے سے میں کافی عرصے سے کام کرتا رہا ہوں ڈاکیومنٹریز کی صورت۔ اچھا سر، پہلے ہمیں یہ بتائیں کہ ہم دوسرے بھی معاملات پہ بات کریں گے، پہلے یہ بتائیں کہ بلوچستان میں جو بڑھتی ہوئی جو محرومی ہے، اس کی کیا وجوہات دیکھیے، بلوچستان ایک ایسا خطہ ہے جو طویل عرصے سے محرومیوں کا شکار رہا ہے۔ وہ وہاں پر بے بسی ہے، لاچاری ہے، اور جس کی وجہ سے لوگوں کا جو احساس محرومی ہے وہ دن بدن بڑھتا جا رہا ہے۔ اس پر آج تک کسی نے توجہ نہیں دی ہے، اس کے دکھ کو کسی نے سمجھا نہیں ہے، اس کی تکلیف کو کسی نے محسوس نہیں کیا، جس کی وجہ سے بلوچستان کا ہر عام آدمی پریشانی میں مبتلا ہے، تکلیف میں مبتلا ہے، ایک کرب میں مبتلا ہے۔ وہ اپنے آپ کو تمام ملک سے الگ سمجھتا ہے، علیحدہ سمجھتا ہے۔ وہ سمجھتا ہے کہ میں ایک ایسا بھائی ہوں جس پر شاید کوئی پیرنٹس کی توجہ نہیں ہے یا کوئی سلسلہ نہیں ہے۔ تو اس کی اس محرومی کو ختم کرنا ہوگا اپنی توجہ سے، اپنے کام سے، اپنے رویوں سے، تب جا کے یہ احساس محرومی ختم کیا جا سکتا ہے۔ اچھا سر، یہ بتائیں کہ بلوچستان میں بسنے والے نوجوان ہی کیوں مایوس ہیں، اس کی کیا وجوہات دیکھیں، بلوچستان کا جو نوجوان ہے اس کے ساتھ جو بڑا مسئلہ یہ ہے کہ اس کے لیے کوئی بھی روزگار کے مواقع نہیں ہیں۔ اس کو آپ کس جگہ پر ایڈجسٹ کرو گے؟ ایک طرح جانب حکومت بات کرتی ہے کہ ہم سی پیک کو اسٹارٹ کر رہے ہیں۔ اب سی پیک کا جتنا بھی کام ہے وہ ٹیکنیکل کام ہے، اس پر جو بلوچستان میں لوگوں کو بیسک ایجوکیشن پراپر طریقے سے نہیں مل رہی ہے۔ اب وہاں کا جو ایک عام آدمی ہے، جو وہاں کا رہائشی ہے، وہ بیچارہ ٹیکنیکل کام تو جانتا نہیں ہے کہ کل کو سی پیک کے حوالے سے کوئی ایسی مشینری کو استعمال کرے یا ایسی جگہ پر کوئی چھوٹی موٹی اس کو جاب مل جائے جس سے اس کا ذریعہ معاش چلے۔ تو آپ نے نہ ان کو ٹیکنیکل اسکل دیے، نہ ان کو آپ نے بیسک ایجوکیشن دی، نہ آپ نے ان کو روزگار دیا، نہ آپ نے زندگی کی جو بیسک ضروریات ہیں ہے نا، اس میں انفراسٹرکچر ہے، روڈ ہے، پانی ہے، بجلی ہے۔ ایون آپ ابھی بھی دیکھ لیں کہ بلوچستان کا علاقہ ہے جو پنجگور ہے، اس میں ابھی تک انٹرنیٹ کی سہولت تک فراہم نہیں ہے۔ تو آپ کس ترقی کی بات کریں تو اس کے نوجوان میں محرومی ہوگی، زیر پسماندگی ہوگی، پریشانی ہوگی۔ وہ بیچارہ نفسیاتی تو ہوگا، وہ آپ کا حصہ ہے، آپ کے جسم کا حصہ ہے۔ تو اپنے جسم کے حصے کا اگر آپ خود خیال نہیں رکھیں گے تو کون رکھے گا؟ ہیں؟ اچھا، آپ نے جو روزگار کی بات کی، تو ابھی ہم دیکھ رہے ہیں کہ ابھی بھی تربت میں وہاں پہ جو دی بلوچ روڈ ہے، جو تربت جو کراچی جو شہر ہے، 2 دنوں سے وہاں پہ جو کاروباری لوگ ہیں وہاں پہ بیٹھے ہوئے دھرنا دے رہے ہیں۔ تو وہاں پہ جو پاک ایران جو سرحد ہے، وہاں پہ جو تیل کا کاروبار ہوتا ہے، یہ پچھلے 3 مہینے سے مسلسل بند ہے۔ اس کی بندش کی وجہ سے ہزاروں لوگ جو بے روزگار ہو گئے ہیں۔ ایک وہاں مکران میں، تربت میں فیکٹریاں نہیں ہیں، دوسرے ذرائع بھی نہیں ہیں۔ تو پھر آپ کیا سمجھتے ہیں کہ اس کی کیا وجوہات ہے کہ لوگوں کو روزگار کے مواقع دینے کے بجائے وہ جو مواقع موجود ہے وہ بھی بند کیے جا رہے ہیں؟ یہ ابھی حال ہی میں جو اسرائیل اور ایران کی جنگ شروع ہوئی، جس کے بعد پاکستان نے اپنا بارڈر بند کیا اور کچھ وجوہات کی بنا پر یہ تمام چیزیں رک گئیں، ادروائز یہ ساری چیزیں چل رہی تھیں اور کافی عرصے سے لوگوں کو سہولیات حاصل تھیں۔ تاہم یہ کہ ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ ابھی بھی مختلف علاقوں میں جو ہے
ईरान से ही बिजली आ रही है, जो कि बलूचिस्तान के इलाकों को फ़राहम की जा रही है। और ज़ाहिर है खाने-पीने की अशिया के हवाले से, दीगर चीज़ों के हवाले से भी ईरान से चीज़ें बलूचिस्तान के इलाकों में आती रही हैं, जिसकी वजह से लोगों का ज़रिया माश, रोज़गार और दीगर चीज़ें तमाम वाबस्ता थीं। अब वहाँ पर चूँकि ना फैक्ट्रियाँ हैं, ना डेवलपमेंट का कोई और काम है जिस पर लोग काम करें, लोगों के पास यही चीज़ें हैं जिसके ज़रिए छोटा-मोटा अपना कारोबार करते हैं और अपनी ज़िंदगी को आगे बढ़ाते हैं और चलते हैं। तो ज़ाहिर है ये छोटी चीज़ हुकूमत की तरफ से तो ये एक छोटा अमल है कि उसको बंद कर दिया गया और ज़ाहिर है कुछ वजूहात की बिना पर बंद किया होगा, हम उस पर हुकूमत पे तनकीद नहीं कर रहे हैं। लेकिन एक आम आदमी के दुःख की बात कर रहे हैं, उसके पेट की बात कर रहे हैं, उसके बच्चों की बात कर रहे हैं, जो बेचारा भूख से मर रहा है, जो बेचारा प्यास से मर रहा है, जो एक महरूमी से मर रहा है, तो उनके लिए हुकूमत को ही चाहिए, अवामी नुमाइंदगी को ही चाहिए, उनके बेसिक मसाइल हल करे, उनके लिए बातचीत करे। वो क्यों इलेक्ट हुआ है? वो इसीलिए इलेक्ट हुआ है कि वो अपने इलाके की बात करेगा, अपने अवाम के मसले की बात करेगा और उनको सहूलियत फराहम करेगा। वो अकाउंटेबल है, वो जवाबदेह है अवाम को, उसने इसलिए वोट लिया है और ये जवाब अवाम उससे लेगी और हर सूरत में लेगी। जी, बिल्कुल, जो आपने बात बताई कि ये इसराइल और ईरान के दरमियान जो ये जंग की फ़िज़ा कायम थी, जंग हुई, तो इस वजह से बलूचिस्तान के जो पाकिस्तान के जितने भी बलूचिस्तान से मुंसलिक बॉर्डर थे, वो बंद किए गए थे। लेकिन जो कीच का मामला थोड़ा मुख्तलिफ है, क्योंकि इस जंग से पहले वो बॉर्डर 2 महीने से बंद रहा है। अभी अगर ये जो जितने मामलात हैं, इनको हल करने का जो ज़रिया है, वो सियासी इस्तेकाम होगी, तब वो मामलात हल होंगे। आप क्या समझते हैं कि बलूचिस्तान में सियासी इस्तेकाम ना होने की वजह क्या हो सकती है? देखिए सियासी इस्तेहकाम भी इसको आप नाम दे सकते हैं और आप इसको एक वो नाम दे सकते हैं कि लोगों के दरमियान एक एतमाद की फ़िज़ा कायम नहीं है। हुँ, एतमाद की फ़िज़ा जिस दिन कायम हुई, लोग एक-दूसरे पर यकीन करने लगे, हुकूमती फ़ैसलों को मानने लगे, उनकी बात को समझने लगे, हुकूमत भी पसमानदा इलाकों पर तवज्जो देने लगी, तब जाके ये मसला हल हो सकता है। अब बलूचिस्तान में सियासी मामलात तो मैं नहीं कहूँगा, बलूचिस्तान में बेसिकली अमन-ओ-अमान का मसला है और अमन-ओ-अमान का मसला आपकी तमाम ज़िंदगी को जो है ना मुतासिर कर रहा है, जिसमें आपकी मईशत आती है, जिसमें आपकी तालीम आती है, जिसमें आपका रोज़गार आता है, जिसमें आपकी सियाहत आती है, जिसमें आपका पूरा बलूचिस्तान आता है, उस खित्ते की खुशहाली आती है। जब तक वो खुशहाली नहीं होगी तो फिर कैसे बलूचिस्तान आगे बढ़ेगा, कैसे तरक्की करेगा? कुछ भी नहीं हो सकेगा। जी, बिल्कुल, अमन के बगैर तरक्की तो नामुमकिन है। अगर ये बलूचिस्तान असेंबली में जो अवामी नुमाइंदे मौजूद हैं, आप क्या समझते हैं कि वो हकीकी नुमाइंदे हैं? वो अवाम की सही तर्जुमानी कर रहे हैं? बलूचिस्तान के जितने भी हुकूमत में लोग इस टाइम बैठे हुए हैं, वो इनफ़रादी तौर पर भी अपने इलाके के नवाब सरदार हैं या टकरी हैं। उनको लोग बड़े इज़्ज़त और मोतबर नामों से जानते हैं। वो फ़ैसले करते हैं अपने कबाइल के, उनके मसाइल हल करते हैं और उनकी बातचीत करते हैं। ताहम उसके बाद यही लोग इलेक्ट होके असेंबलियों में आते हैं। असेंबलियों में इलेक्ट होने से पहले बड़े-बड़े दावे करते हैं, बलूचिस्तान का राग अलाप आ जाता है कि बलूचिस्तान के साथ फलाँ ने ये कर दिया, वफ़ाक ने ये कर दिया, हुकूमत ने ये कर दिया, पॉलिसी साज़ी ये गलत कर रहे हैं, सारी चीज़ों की वो बातें करते हैं। लेकिन जैसे ही वो असेंबली में आते हैं, दाखिल होते हैं और हल्फ़ उठा लेते हैं, तो उसके बाद ना उनकी आँखों को कुछ दिखाई देता है, ना उनके कानों को कुछ सुनाई देता है, ना वो अपनी ज़ुबान से किसी के हक़ के लिए कोई लबकुशाई कर सकते हैं। ये खामोशी, ये रवैया, ये तरीक़ेकार मुझे आज तक समझ में नहीं आया कि आख़िर ऐसा क्यों हो रहा है। आज भी जो बलूचिस्तान का आम आदमी है, वो एक कर्ब में मुब्तला है और उसको कर्ब में मुब्तला होने की वजह उसके इलाके का ही बंदा है, जो उसकी बात करेगा। अगर वो बात नहीं करेगा, तो फिर वो मसला हल कैसे होगा? डायलॉग की सूरत में ही मसले हल होते हैं। दुनिया की जितनी जंगें लड़ी गई हैं, जितने भी मसाइल हुए हैं, वो बातचीत के ज़रिए हल हुए हैं। लेकिन यहाँ पर बातचीत का मामला ही रोक दिया गया है, इस वजह से आगे सूरत-ए-हाल आगे नहीं बढ़ पा रही है। हम देखते हैं कि बलूचिस्तान असेंबली में वहाँ पे अवामी जो इस मामलात हैं, वो डिस्कस होना चाहिए, कानून साज़ी होनी चाहिए। तो कानून साज़ एक फ़ोरम है, एक अदारा है। वहाँ एक पिछले दिनों एक वीडियो वायरल हुई थी कि असेंबली में भी इस बात पर बहस हुई थी कि किसने अपने नाक में उँगली डाला। फिर वो इस बात पर बहस हुई कि किसने ये वीडियो बनाई, कैमरामैन कौन था? तो फिर तक कि असेंबली के फ़ोरम पर जो वज़रा हैं, वो एक वज़ीर ये बात कहे गए कि अगर हुकूमत ने
जिसने कि ये फुटेज बनाई, ये हुकूमत ने अगर एक्शन नहीं लिया, तो फिर हम ज़ाती तौर पर एक्शन लेंगे। तो फिर आप इस तरह की जो असेंबली की जो सूरत-हाल वहाँ पे की बातें अवाम तक इस तरह जब पहुँचेंगी, तो फिर अवाम पर क्या असरात पड़ेगा? मैं इस मसले को ऐसे समझता हूँ कि जो नुमाइंदे हैं ना, उनकी थोड़ी अप्रोच का मसला है। अगर जो अवामी नुमाइंदा है, उसके पास पॉलिसी नहीं है, उसके पास हिकमत अमली नहीं है, उसके पास तरीक़ेकार नहीं है, उसके पास आइडियाज़ नहीं है, तो वो फिर अपने इलाके के लिए क्या तरक्की करेगा, अपना वफ़ाक़ी हुकूमत से क्या स्कीमें लेके बलूचिस्तान के लिए आएगा, नौजवानों के लिए क्या करेगा, रोज़गार के लिए क्या करेगा। अब बात ये है कि एक नॉन इश्यू को इश्यू बना दिया जाता है और उससे अवाम की तवज्जो हटा दी जाती है और अवाम भी खुश होती है कि देखा असेंबली में ये हुआ और फलाँ ने फलाँ को ये कह दिया। वो इन छोटी-छोटी बातों पर खुश होते हैं कि फलाँ ने ऐसा ऐसी बात की, फलाँ ने ऐसी बात की। जबकि ये नॉन इश्यू हैं। जो एक आम आदमी का मसला है, वो उसके रोज़गार का मसला है, वो उसकी खुशहाली का मसला है, वो उसके जो है तहफ़्फ़ुज़ का मसला है। वो जहाँ घूमे-फिरे उसको तहफ़्फ़ुज़ हासिल हो, उसको अच्छी सेहत की सहूलियात मिलें, उसको अच्छी तालीम मिले, उसको सफ़र की अच्छी सहूलियात मिलें, उसको रोड मिले, इंफ्रास्ट्रक्चर मिले, पानी मिले, बिजली मिले। लेकिन अवाम को भी इस मसलों से हटा दिया गया, अवाम भी बस उन्हीं की बातों पे हँसते हैं, मुस्कुराते हैं और अपने सारे गम भुला देते हैं। अच्छा सर, एक ये भी बताएँ कि बलूचिस्तान को सयाहती हवाले से कैसे बेहतर बनाया जा सकता है कि ताकि जो लोगों का जो रुझान है वहाँ पे जो बलूचिस्तान के हवाले से जो पॉज़िटिव चीज़ें भी सामने आएँ, अगर दूसरे इलाकों के जो लोग हैं वो भी बलूचिस्तान में आकर वहाँ के मामलात को समझ सकें? देखिए, सबसे पहले बलूचिस्तान में अमन-ओ-अमान कायम करना होगा, फिर ये जो बेयकीनी की कैफ़ियत है उसको ख़त्म करना होगा, एतमाद साज़ी को बहाल करना होगा, लोगों को ये बताना होगा कि आप हमारा हिस्सा हो, हम आपके हैं और हमारी तमाम तवज्जो, सहूलियात, मुल्क, कौम आपके लिए दिन-रात कोशां है कि आप तरक्की करो। जिस दिन बलूचिस्तान में अमन-ओ-अमान का मसला हल हुआ, वहाँ पर सियाहत भी तरक्की करेगी, मुल्क के दीगर हिस्सों से लोग वहाँ पर सियाहत के लिए आएँगे, अपने बच्चों के हमरा वहाँ लुत्फ़-अंदोज़ होंगे। बलूचिस्तान में जहाँ पर जो लोग बसने वाले हैं, जो रोज़गार और छोटे कारोबार का सोचते हैं, उनको मुख्तलिफ़ किस्म के काम मिलेंगे, वो काम करेंगे, उनके खित्ते में खुशहाली आएगी, लोग तालीम हासिल करेंगे, उन्हें रोज़गार मिलेगा, तभी तरक्की होगी, तभी पाकिस्तान का नाम रोशन होगा, तभी लोग पाकिस्तान को जानेंगे। अब इस चीज़ से तो वो तरक्की नहीं हो सकती कि एक तरफ अमन-ओ-अमान की सूरत-हाल ख़राब हो और दूसरी तरफ मैं आपको कहूँ कि बलूचिस्तान तो बहुत खूबसूरत है। खूबसूरत है, लेकिन उस खूबसूरती को कायम रहने दिया जाए, उसको बेहतर बनाया जाए, उसको मज़ीद तरक्की की राहों पर गामज़न किया जाए। ये हुकूमत की और जितने भी नुमाइंदे इलेक्ट होके आए हैं, ये उन सब की ज़िम्मेदारी है। एक एक बात ये है कि वो हम बलूचिस्तान के मामलात में देखते हैं, जो भी वज़ीर आला होता है, वो पार्टीज़ होते हैं जो इक़्तिदार में आते हैं। जब इक़्तिदार के बाद वो कहते हैं कि वो एक एक बात ये है कि वो हम बलूचिस्तान के मामलात में देखते हैं, जो भी वज़ीर आला होता है, वो पार्टीज़ होते हैं जो इक़्तिदार में आते हैं। जब इक़्तिदार के बाद वो कहते हैं कि वज़ीर आला हों या कि पार्टीज़ हों, उनके वज़रा हों, वो कहते हैं कि जी हमें तो इख्तियार ही नहीं था, हम बहुत से मामलात में हम बेइख्तियार थे, हमारे हाथ-पाँव बाँधे गए थे, हम वो सब कुर्सी पर बैठे तो थे। लेकिन अभी हम देख रहे हैं कि वज़ीर आला है वो पीपल्स पार्टी से है और पीपल्स पार्टी का जो सदर है, वो सदर ममलिकत भी पीपल्स पार्टी से है। तो क्या ये अब बलूचिस्तान के मसाइल हल कर सकेंगे? मैं आपको ये चीज़ तो कह सकता हूँ कि जो बलूचिस्तान के नुमाइंदे इलेक्ट होके असेंबली में आए हैं, वो अगर ये कहते हैं कि हमारे हाथ-पाँव बंधे हुए थे, हमारे पास इख्तियारात नहीं थे, तो वो फिर वो सीट पर क्यों रहे? उनको रिज़ाइन देके चले जाना चाहिए था, घर पे बैठ जाना चाहिए था। सीट पे भी बैठे रहे और पावर भी नहीं मिली। ये लोगों को बेवकूफ़ बनाने के मुख्तलिफ़ तरीक़ेकार हैं, इससे कोई भी ग्रोथ नहीं होगी, इससे कोई भी तरक्की नहीं होगी। आप लेजिस्लेशन के लिए असेंबली में बैठे हो, आप पॉलिसी साज़ी के लिए असेंबली में बैठे हो, वहाँ पर आप एक बिल मंज़ूर कराते हो, वहाँ पर मुख्तलिफ़ वफ़ाक़ से स्कीमें लेकर ला सकते हो, आप बहुत कुछ कर सकते हो। ये बात कहना बिल्कुल भी हमारे लिए हकीकत का बायस नहीं है कि उनके पास इख्तियारात नहीं थे और वो बलूचिस्तान के लिए कुछ नहीं कर सके। रही बात सदर आसिफ़ अली ज़रदारी की, मैं आपको अभी भी यकीन से कह सकता हूँ कि ये जितने भी वज़राए कराम हैं या जो वज़ीर आला बलूचिस्तान है नवाब सरफ़राज़ बुगटी, ये अभी भी अगर वफ़्द की सूरत में सदर आसिफ़ अली ज़रदारी से मिलें और बलूचिस्तान के
जो रियल प्रॉब्लम्स हैं, वो एजुकेशन के हवाले से हों, वो रोज़गार के हवाले से हों, वो इंफ्रास्ट्रक्चर के हवाले से हों, वो अमन-अमान के हवाले से हों। अगर इन चीज़ों पर वो अपने ज़ाती मफ़ादात छोड़कर जाकर बात करें कि हम बलूचिस्तान की ये तरक्की देखना चाहते हैं और आप इस हवाले से हमारी मदद करें, मैं आपको यकीन से कह सकता हूँ कि सदर आसिफ अली ज़रदारी उनको बिल्कुल उनकी हेल्प करेंगे, वो वज़ीर-ए-आज़म से भी बात करेंगे, वो वज़ीर आला सरफ़राज़ अली भुट्टी को भी कहेंगे कि आप ये सारे मसाइल हल करो, वो बलूचिस्तान की खुशहाली के लिए भी बात करेंगे। लेकिन मसला ये है कि असेंबलियों में बैठे हुए लोग अपने ज़ाती मफ़ादात की तो बात करते हैं, लेकिन अवाम की कोई बात नहीं करता। आप बलूचिस्तान के मसले पर मुझे बता दें कि असेंबली के कितने अरकान सारे इकट्ठे हुए हैं कि यार ये हमारा ज़ाती मसला है, हम इस पर कंप्रोमाइज़ नहीं करेंगे जब तक ये हल नहीं होगा। ऐसा कुछ नहीं होता है, सब मुंतशिर हो जाते हैं, अपने-अपने छोटे-छोटे मफ़ादात और दीगर चीज़ों की सूरत में बढ़ जाते हैं, तक़सीम हो जाते हैं। जबकि बलूचिस्तान का मसला सबका मुश्तरका मसला है, वहाँ पर किसी भी किस्म की महरूमी है, वहाँ किसी भी किस्म की तरक्की नहीं है, वहाँ किसी भी किस्म का प्रॉब्लम है, तो वो ये बलूचिस्तान के एक शख्स का नहीं है, वहाँ पर जितनी भी अक़वाम रह रही हैं, जितने भी लोग रह रहे हैं, उन सब का मुश्तरका मसला है और उस मसले को अगर ये तवज्जो से हल नहीं करेंगे, तो ज़ाहिर है फिर ये मुश्किल में ही होंगे, तकलीफ़ में ही होंगे और उन सारी तकलीफ़ों से ज़्यादा जो है, वो जो एक आम आदमी है जिसने अपने वोट से तब्दीली की बात की है कि मेरे इस वोट से तब्दीली आएगी, बेहतरी आएगी, सहूलियात आएँगी, खुशहाली आएगी, वो बेचारा तो महरूम ही रहेगा, मायूस ही रहेगा, मज़ीद डिप्रेशन का शिकार होगा। अच्छा सर, लास्ट में हमें ये बताएँ कि बलूचिस्तान वसाइल से माला-माल है, सी-पैक प्रोजेक्ट है, इसके बावजूद बलूचिस्तान पसमानदा है, बलूचिस्तान के अवाम गुर्बत का शिकार हैं। तो आप इस तनाज़ुर में बलूचिस्तान के मुस्तक़बिल को कैसे देखते हैं? क्या बलूचिस्तान के मुस्तक़बिल और बलूचिस्तान के अवाम के मुस्तक़बिल को कैसे देखते देखिए, जितनी भी तरक्की की स्कीमें हैं ना, मैंने आपसे बात की कि उसके लिए एजुकेशन ज़रूरी है। बलूचिस्तान के लोगों को आप एजुकेट करो, नौजवान को एजुकेट करो, वो अच्छी तालीम हासिल करें, टेक्निकल एजुकेशन हासिल करें। अब वो तरक्की अभी वो दौर नहीं रहा है ना कि वो कोई मज़दूरी करेगा जाकर वहाँ पर। उस अब सारी चीज़ें मशीनरी हो गई हैं, सारी टेक्निकल चीज़ें हो गई हैं। जब तक आप टेक्निकल तालीम आपके पास नहीं है, तो आप मुख्तलिफ़ चीज़ें नहीं चला सकते हो। आप उनको जब तक टेक्निकल हैंड नहीं करोगे, आप उनको अच्छी एजुकेशन नहीं दोगे, आप उनको बेहतर रोज़गार नहीं दे सकते हो। तो उनकी उस चीज़ों पर तरक्की दीजिए। जितने भी बलूचिस्तान में जारी प्रोजेक्ट्स हैं या आगे आने वाले जितनी भी मादनियात हैं और जो भी चीज़ें बलूचिस्तान से वाबस्ता हैं, वो उन लोगों की है, वो उस खित्ते के में बसने वाले लोगों की तरक्की की ज़ामिन होनी चाहिए। लेकिन चूँकि मैंने आपको कहा कि उन पर उनके लिए बात करने वाला भी हुकूमती नुमाइंदा होगा। जो असेंबली में जाके बैठता है, बात करता है और कानून साज़ी करता है। जब तक वो अपनी बात नहीं करेंगे, शोर नहीं मचाएँगे, तब तक उनको वो मसाइल उनके हल नहीं होंगे। तो उनके लिए मसाइल हल करने के लिए भी उनके अपने नुमाइंदे ही हैं, जो बात करेंगे और उनकी महरूमी का खात्मा करेंगे। इमरान मंगी साहब, आपका बहुत-बहुत शुक्रिया, आपने टाइम दिया, अपनी कीमती राय से हमें आगाह किया। बलूचिस्तान के जो मसला-मसाइल हैं, बलूचिस्तान के जो तरक्की का जो मसला है, जो दूसरे जो मामलात हैं, मसाइल हैं, इनकी जो बुनियाद है, वो अमन है। अगर जब तक अमन कायम नहीं होगी होगी तो फिर ये जो सारी सिलसिला है तरक्की का, वो इसी तरह रुका रहेगा। लेकिन अमन जब तब कायम होगा, उस वक़्त तक जो हमारे जो पॉलिसी साज़ अदारे हैं कि जो पॉलिसियाँ बनाते हैं या कि जो बलूचिस्तान के मतलब जो फ़ैसले करते हैं, वो सिर्फ़ क्वेटा तक बलूचिस्तान को क्वेटा ना समझें। सिर्फ़ क्वेटा में आकर वहाँ के लोगों से सिर्फ़ बात ना करें, बिल्कुल बेशक बात करें, कैपिटल है। लेकिन अगर पूरे थ्रू आउट बलूचिस्तान के अगर मसले को मसाइल को जानना चाहते हैं, वहाँ अवाम की राय जानना चाहते हैं, तो फिर बलूचिस्तान के कम से कम जो बड़े-बड़े जो शहर हैं, वहाँ उनको खुद जाना चाहिए, वहाँ के जो स्टेक होल्डर्स हैं, उनसे बात करनी चाहिए, उनकी राय मालूम करनी चाहिए, तब मसले का हल निकल सकता है। फिलहाल हमें इजाज़त दे दें, किसी और पॉडकास्ट के साथ हम आपके सामने रहेंगे।